रात तक बहस काहे की करे। There is a question, I know. अब ये तो आप बोलेंगे तब आप पूछना। अभी तो मैं अहमद पटेल जी को बुला रही हूँ। 55 में आ रही है वो बात। उपसभापति महोदया, सम्माननीय अर्जुन सिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। इस बहस के जरिए मैं कोई वर्ग विशेष या कोई समुदाय विशेष के बारे में वकालत करना नहीं चाहता, या न तो मैं अकलियत की या अक्सरियत की बात करना चाहता हूँ, बल्कि गुजरात में जो हो रहा है, गुजरात में जो बीमारी या बीमारी के जो सिम्टम है वो और प्रदेश में न फैलें। अरुण जेटली को बोलना इनके बारे। अगर और प्रदेश में अगर फैलें तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं इस बहस में जो बात करने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा, कोई वर्ग विशेष या कोई समुदाय विशेष की बात करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि राष्ट्र के हित में जो कुछ बातें हैं वो सदन के सामने मैं रखना चाहता हूं। सम्माननीय अर्जुन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा, उसके बाद सदन के नेता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, और होम मिनिस्ट्री जो काम कर रही है 355 के तहत ही काम कर रही है इफेक्टिवली। माफ करना, मैं इसके साथ सहमत नहीं, मैं डिफर हो रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है वो इफेक्टिवली नहीं हो रहा। और हमें वहां की सरकार तो है ही, लेकिन जो मैं उदाहरण देना चाहता हूं उससे सरकार की नीति, नियत और इरादों पे शक हो रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिनके अंदर आती है, जिनके चार्ज में सदन के नेता हैं, इंडियन एक्सप्रेस में 28/4 को जो आया था, जो वेबसाइट है MEA की, मे बी द एम इन MEA कांट इंक्लूड मुस्लिम। मुझे मालूम नहीं 28 के बाद वेबसाइट में बाकी कुछ चीजें इंक्लूड की गई या नहीं की गई। ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, अंडर द हेडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन गुजरात, द फैक्ट्स अपडेटेड ऑन April 22nd, it has a 55-frame slideshow. Not one mentions the killing of any Muslim or of any attack against them. In contrast, it has details of the Godhra attack with pictures and the date. जब इनके विभाग में हो रहा है, मुझे नहीं मालूम ये वेबसाइट पे क्या हो रहा है, क्या नहीं। यहां रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बात की गई है, कह रहा है सब ठीक हो रहा है, लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया 28/4 का पढ़िए, modified priorities in Gujarat. On April 13, just before returning here from the Bharatiya Janata Party's National Executive Meeting in Goa, Chief Minister Narendra Modi declared that my first priority was to provide relief and to rehabilitate riot victims. Back here, when asked whether he was willing to go in for election by June, Modi said, I repeat, my main thrust would be to wipe the tears of those who have suffered in the riot. Let alone wiping tears, Modi has not even visited a single relief camp to fulfill his promise, except the Kankaria school number 7 and number 8, where 550 Dalit riot victims were distributed compensation checks to make the Baba Ambedkar birth anniversary. What camps? Asked a senior official in the CMO. Even before Goa, Modi had not been to any camp except Shah Alam when he had to accompany Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on April 4, and later on April 14 when he visited the Dalit camp near Kankaria. Also, Modi has not even called a meeting to discuss the rehabilitation of the riot victims.
What keeps him busy when Gujarat wants? Routine Home Department meeting on law and order, a cabinet meeting where an attempt was made to blame camp inmates for riots, the inauguration of 4 water supply schemes, 3 meetings on power shortage in the state, including one with RSS-backed Bharatiya Kisan Sangh, a earthquake review meeting, and the religious function laying the foundation stone, so and so. In fact, a scam through the CM's program, post-Goa indicates that except for attending the all-party committee meeting called by the Gujarat Governor S.S. Bhandari on April 23, the CM has taken no official meeting on riot victims. He asked an official during a meeting on scarcity to brief him about the progress in relief work. He was briefed for 15 minutes. That was all, said a senior bureaucrat. Official R reflects wonder when the CM will turn his attention towards the rehabilitation of 1.13 lakh refugees living in 100-old relief camps in Gujarat. This is the situation. इससे पता चलता है कि वहां की सरकार कितनी सीरियस है. आज भी ऐसे रिलीफ कैंप्स है वहां पे जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. प्रधानमंत्री जी गए थे वहां, बात करके आए, हिदायत दे के आए, इनकी इंस्ट्रक्शन से वहां पे रिलीफ कमेटी बनी, लेकिन आज जो होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है. कैंप्स है, जिस तरह से राशन पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं रहा है. जो रिलीफ कैंप से जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप गांव में वापस जाइए, लेकिन गांव में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग वापस न जा सके. मैं समझता हूं ये बहुत ही सीरियस बात है. एक तरफ आप उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां एटमॉस्फेयर माहौल ऐसा बना हुआ है तो वो जा ना पाए. कौन सी इनिशिएटिव ली? ये सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री जी या मिनिस्टर वहां पे जाके गांव को लोगों को समझाएं. क्या एक भी कोशिश की गई है वहां के, खास करके ट्राइबल एरियाज में, देहात है, गांव वालों को बिठा के करने की क्या कोई कोशिश की गई है कि भाई चलो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए जिसके वो लोग वहां पे जा सके? जिस तरह से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जिस तरह से कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठ रहे. और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे कितना भी हम प्रस्ताव का समर्थन कर दें, चाहे कितनी भी बात करें, लेकिन कथनी और करनी में यहां फर्क दिखाई दे रहा है. जो कहते हैं वो करते नहीं है. मुख्यमंत्री जी का आदर्श देखिए, राजकोट में सेक्युलर जो फोर्सेस है उनको गाली दे दी, ढोंगी लोग हैं. सेक्युलरिज्म की बात जब भी आती है मुझे पता नहीं इतनी एलर्जी क्यों है लोगों को. सेक्युलरिज्म है तो देश बच पाएगा, अगर सेक्युलरिज्म नहीं है तो देश को बचाना मुश्किल है. मैं समझता हूं. और जो लोग वन पीपल वन नेशन और वन कल्चर की बात कर रहे हैं, जो कल्चर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म भी इतनी ही महत्वपूर्ण बात है. जो लोग सीडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं वो भी सूडो कल्चरल नेशनलिज्म है. वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए. राष्ट्र की भावना उभारो, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र के लिए बात करनी चाहिए. कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, शहादत दी. आज कांग्रेस पे दोषारोपण हो रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आदमी का गमों से रिश्ता है, जिंदगी है तो हादसे भी होंगे. आदमी का गमों से रिश्ता है, जिंदगी है तो हादसे भी होंगे, और पत्थरों से सामना है उनका जिन दरख्तों पे फल लगे होंगे. कांग्रेस ने अगर कुछ किया है, आजादी की लड़ाई में शहादत दी, बलिदान दिए, उसके बाद भी आर्थिक तौर पे इस देश को आजाद करने की कोशिश की, और आज कांग्रेस को दोषी ठहरा. आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे परसों एक सीनियर ऑफिसर मिले थे एयरपोर्ट पे, और एक बहुत ही गंभीर बात है जो मैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान पे लाना चाहता हूं. मैं ऑफिसर का नाम देना नहीं चाहता, अगर जरूरत होगी मैं उसका नाम भी प्रधानमंत्री जी को देने के लिए तैयार हूं. वो आप आके उनसे बात करें, उनसे पूछे कि क्या है. उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, कहा गया कि फला जगह जो रायट हुआ है आप वहां के कांग्रेसियों के नाम दीजिए. इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर कहें तो मैं प्राइवेटली प्रधानमंत्री जी को उनका नाम देने के लिए भी तैयार हूं, उनकी मीटिंग कराने के लिए भी तैयार. कांग्रेस को दोषी ठहरा. अरे कांग्रेस, अगर कांग्रेस के लोग अगर इन्वॉल्व है उनको सजा दीजिए, उनको फांसी दीजिए, हमें जरा भी ऐतराज नहीं है. लेकिन रायट्स हो रहे हो, एग्जाम में भी मैं आऊंगा, एग्जाम और इससे निष्पत्त नहीं है. एग्जाम की बात भी मैं करूंगा. अरुण जेटली जी अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने उनसे बात की एग्जाम के बारे में, मैं अच्छी तरह से मैंने उनको बताया. अगर ऐसा कोई बहिष्कार करे तो ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते. लेकिन अगर किसी ने कहा भी है
तो नॉट ऑल द कांग्रेस बैठिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने किया एग्जाम की बात करने की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अरुण जेटली जी जानते हैं मैंने बात की है। Yes. The Chief Minister of Gujarat is not here. The Honorable Ahmad Patel ji has said. आप सुनिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? Let him ask me and I will deal it. He has taken the name of the Chief Minister and said, attributed something to him, saying that he has given instruction to a particular officer to name certain Congress people in the FIR or in the right this thing. He is not here to defend. Nobody knows the truth. You do not have any document to prove it. He is a senior member. He is a senior member. And the House cannot go into the truth of the matter because we don't have other means of reaching the truth. So I want to request the chair to direct him to desist from making such charge against the Chief Minister, who is not here to defend unless he has got a document to prove it. I will. अगर ये I will गलत have होगा him. प्रधानमंत्री वेरीफाई कर ले, अगर ये गलत होगा तो मुझे खुशी होगी और मैं विड्रॉ कर लूंगा। आई हैव नथिंग टू से। You can, if you can substantiate to, as you have offered to the Prime Minister. मैंने जैसे Then कहा, I will allow yeah, that's you. right. You और will ये तो you just take it out, substantiate I don't mind, I don't mind. जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के अटर्नेंसेस हो रहे हैं, पहले भी मैं काफी गुजरात के बारे में कह चुका हूं, उसका मैं पुनरावर्तन नहीं करना चाहता, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा कहां क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक दो चीजें मैं सदन के सामने ध्यान पे लाना चाहता हूं। एक्शन रिएक्शन की बात की, न्यूटन थियरी की बात की, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। चलिए नहीं हुई, मान लिया। राजकोट सेक्युलर फोर्सेस को गाली दी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो सदन में बहस हो रहा था और जब बलात्कार की बात आई, अगर जॉर्ज फर्नांडिस इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहते मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन रक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। मिनिस्टर ऑल्सो लोकसभा बोला क्यों है? ये पेपर में आया, ये आप बोलिए तो। हमने जो पढ़ा है हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि लोकसभा में बोला। May I suggest one thing? I think I am still sitting in the chair and quite visible. If he objects something, never mind. I can answer him that Mr. George Fernandes is a minister. He is answerable to both the houses of parliament. We will not permit any mention of a member of the Lok Sabha who is not a minister. Or they cannot mention any member from Rajya Sabha if he or she is not a minister. So as a minister, it is the government responsibility. That's why he has taken the name. These are rules are there which I follow. I don't go beyond the rule book. मैं ये रेज नहीं करना चाहता था। अगर वहां या कुछ मैं हमने अखबार में नहीं पढ़ा होता, आई वुड नॉट हैव रेज्ड। लेकिन जब कहा गया है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का जो वहां पे कल जो भाषण दिया है, मैं उसके रेफरेंस में बात करना चाह रहा हूं। जो महिला है उसका नाम है, इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज नोट डाउन, कौसर बानो फिरोज खान, जवान नगर सोसाइटी, नरोरा पाटिया। और जो आई विटनेस है जिन्होंने एफिडेविट की है, मेरे पास एफिडेविट भी है, अगर कहें तो मैं सदन के पटल पे रखने के लिए मैं तैयार हूं। उनका नाम जो है जन्नत बीबी कल्लूबाई, जो आई विटनेस है और जो शाह आलम कैंप में है, और उनका कैंप का जो कार्ड नंबर है 29 है। टोटल 120 लोग वहां पे मारे गए थे। जो इंफॉर्मेशन है यू कैन वेरीफाई। सिर्फ पुलिस ने जो रजिस्टर किया है सिर्फ 20 लोगों के लिए किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कल कहा वहां पे जो भाषण दिया, गुजरात स्थापना दिन तक, कोई अच्छी बात करते तो मुझे खुशी होती, लेकिन वहां जो कहा गया कि जिस तरह से बातें हो रही है, लोगों की भावनाओं को उभारने की कोशिश की जा रही है कि जैसे गुजरात के 5 करोड़ लोग बलात्कारी है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक जिम्मेदार आदमी अगर इस तरह का स्टेटमेंट करे, इसी को लेकर इस तरह से भाषण दिया जाए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? गलत है, गलत। प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, मुझे काफी उनके लिए ये है, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद में बात की, उसके बाद मुझे नहीं मालूम, लोग कह रहे हैं हृदय परिवर्तन हुआ, पणजी में जाके कुछ बात की, उसके बाद गौहती में जाके कोई बात की, गुजरात में यह कहा कि मैं बाहर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पागलपन का जवाब पागलपन नहीं हो सकता।
लेकिन पणजी में जाकर यह कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है उसका मूल गोधरा है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गोधरा में मूल है तो क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पागलपन का जवाब पागलपन नहीं हो सकता, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि उसका मूल गोधरा में है, कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो आगे चल के कहूंगा कि गोधरा का मूल क्या है उसमें भी हमें जाना पड़ेगा। और उसीलिए मैं यहां पे प्रधानमंत्री जी बैठे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब यूनानिमसली आप ये प्रस्ताव आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक बात एक क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से आप इंक्वायरी करा लीजिए कि गोधरा के मूल में क्या है और गुजरात के मूल में क्या है। कम से कम ये तो कराइए, क्या आपकी तैयारी है क्या? हम लोग हीलिंग टच की बात कर रहे हैं, हम हीलिंग टच की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घाव पे मरहम लगाना चाहिए, घाव पे एसिड नहीं छिड़कना चाहिए, मिर्च नहीं छिड़कना चाहिए। यहां घाव पे जिम्मेदार लोग जो सरकार में बैठे हैं वो मिर्च छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, एसिड छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। आखिर हो क्या रहा है? कम से कम अगर हीलिंग टच देना है तो जस्टिस मिलना चाहिए। किसी को भी अन्याय हुआ हो, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, चाहे मुस्लिम के खिलाफ हो, चाहे हिंदू के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो, क्यों एक्शन नहीं लिए जाते? क्यों अरेस्ट नहीं हो रही है? क्या वजह है? कम से कम प्रधानमंत्री जी वहां से डिटेल तो मंगवाइए कि अब तक कितनी एफआईआर रजिस्टर हुई है, कितने लोगों की अरेस्ट हुई है, क्यों कुछ लोगों की अरेस्ट नहीं हुई है। कम से कम डिटेल रिपोर्ट आप तो कॉन्फिडेंसली मंगाइए ताकि आपको पता चले कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं आपको एक विनती करना चाहूंगा, आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग बात करिए, आपने उसका क्लेरिफिकेशन भी किया, हमने मान लिया। चाहे किसी के लिए अलग दिल रखिए और किसी के लिए अलग दिल रखिए, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के लिए तो एक दिल, एक जवान और एक भाषा रखिए। अलग अलग जगह जाके अलग अलग हमारे दिल की बात करते हैं, जैसे एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। राष्ट्र के हित में कम से कम एक जबान, एक दिल और एक भाषा होना बहुत ही जरूरी है। सालों आपने निकाले हैं, आपकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैरियर। मैं समझता हूं ये वक्त है आजादी की लड़ाई की और भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो किया, मैंने अपने बात की, मुझे नहीं मालूम और लोगों की भूमिका क्या रही हो, लेकिन कम से कम एक वक्त आया हुआ है फिर से एक बार राष्ट्र के हित में कुछ कदम उठाने का। अगर ये नहीं किया, ये बीमारी अगर फैली और प्रदेश में और राज्यों में, फायदा किसको होगा? हमारे दुश्मन देश को फायदा होगा। वो तो चाहते ही है, पाकिस्तान भी चाहता है कि हिंदुस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्या हम ये चाहते हैं? मेहरबानी करके इस बीमारी को रोकने की जरूरत है। अगर ये बीमारी और प्रदेश में फैली तो उससे देश को नुकसान होगा और दुश्मन देश को फायदा होगा। आजादी की लड़ाई के बाद हमारे जैसे युवा तो पैदा हुए,